السلام علیکم حضرت. وعلیکم کون صاحب؟ میں مقصود اختر چشتی اشرفی. ماشاء اللہ حضرت. ہمارا نمبر کیسے ملا؟ حضرت ہم آپ کے نمبر بہت پہلے ہم یوٹیوب پر منگا چکے تھے. اچھا جی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا کرم ہے. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ جو درود شریف وہ بتا رہے تھے اللہم صلی علی سیدنا و مولا احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ اس عنہ. طرح سے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الامام احمد رضا البریلوی رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح سے. ہاں، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ شجرہ ملے گا بریلی میں. آپ شجرہ کہنا، ہمیں حضرت کا عربی والا شجرہ دے دو. یہ جو ان کے ماننے والے ہیں نا. جی جی ہاں 10 ایک لے لینا، مجھے بھی بھیج دینا. میرے پاس ہے نہیں ابھی ذرا. جی 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 عربی والا کہنا، حضرت کا جو عربی میں شجرہ پڑا جاتا ہے وہ دو. جی 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 تو اس میں سب پہ درود ہے، ان کے خاندان یعنی ان پہ بھی، ان کے بیٹے پہ بھی. ہوں اور اللہ کے رسول کے اوپر تو درود یہ بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اشارے میں بھیجا ہے اللہ کے رسول پر. جی جی اور ان پر نام لے کے بھیجا گیا ہے. جی بھلا بتائیے کتنا بڑا گستاخی ہے. بتاؤ، اللہ کے رسول کا تو نام بھی نہیں ہے درود شریف میں، اور فاضل نہ بریلوی کا نام بھی ہے. وعلی المولا الامام احمد رضا، ڈگری بھی ہے امام احمد رضا البریلوی رضی اللہ عنہ بھی ہے لاسٹ میں. ان کا کلمہ بھی تو ہے. ارے وہ تو کیا معلوم کیا کر رکھا ہے. اور کہاں سے بول رہا ہوں ابھی آپ؟ جی جی حضرت میں دیوریا ضلع سے بول رہا ہوں. اچھا دیوریا میں ہو. جی جی دیوریا میں کیا پوزیشن ہے؟ جی کتنے لوگ ہیں دیوبندی بریلوی کتنے ہیں وہاں؟ دیوبندی بریلی ہیں. آدھے ہیں کہ کم زیادہ ہیں؟ نہیں بریلوی زیادہ ہے. ایسا کیا ہے؟ بریلوی دیوبندی لوگ کم ہیں. اچھا یہ قاری رضی اللہ دیوریا کا ہی تو تھا. ہاں کنک پپرا میں. قاری رضی اللہ جو تھے نا تقریر کرتے تھے. ہاں وہ کنک پپرا میں دیوریا پڑتا ہے. وہیں کے تھے نا؟ جی جی ہاں اللہ مدد فرمائے. چلو محنت کرتے رہو آپ. ہاں تو وہ ان کا کلمہ بھی نہ تھے لا الہ الا اللہ احمد رضا ولی اللہ. اب یہ آگے چل کے کیسے کریں گے اللہ ہی بہتر جانے. ان کے ویسایا میں لکھا ہوا ہے نا. ہاں وہ تو لکھا میرے دین مذہب پر مضبوطی سے عمل کرو. ہاں اس کے بعد سے پھر حضور پر نور. ہاں وہ بھی لکھا ہے. وہ بھی لکھا ہے اس میں المضمون حضور پر نور اعلی حضرت. ہاں احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پر نور بتائیے کون سی راگ پر نور ہوگا صاحب یہ؟ دیکھیے یہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. انشاءاللہ یہ عنقریب 1-2 سال میں ختم ہو جائیں گے بس. جی جی ایسا لگ رہا ہے 1-2 سال وہ لگے گا ان کو ختم ہونے میں بس. کیونکہ ان پر تو پورا ہاتھ دھو کر بھیڑ گئے ہیں قاری احمد حسن. ہاں وہ تو شکنجے میں لیا ہوا ہے ان کو. زبردست شکنجے میں لیا ہوا ہے. جی قاری احمد حسن. جی جی امروہہ یو پی. بہت زبردست شکنجے میں لیا ہوا ہے ان کو. ہاں وہ بہت دھواں دھار چل رہے ہیں اتنی وقت. بہت زبردست تقریر کرتے ہیں وہ. ہاں تقریر بھی زبردست کرتے ہیں. مناظرہ بھی. مناظرے میں ان سے جیت نہیں پاتے بڑے. نہیں کوئی نہیں جیتا. ہاں یہ بات ہے، بہت کرنا پڑتا تھا قاری احمد حسن. کیونکہ حماد رضا وہ بھی آ رہا ہے، مفتی گلفام آ رہا ہے. ارے جتنے بھی ہیں گلفام وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صغیر احمد ظفر پوری بھی آ رہا ہے نا. صغیر ظفر پوری تو ایسی ہے بس. ہاں اس کے بعد پھر یہ طفیل رضا شمسی یہ بھی ہرا. جی
ہاں تو تو کوئی خاص نہیں ہے بیچارہ. یہ مکرانہ کے ہیں مفتی شمس الدین مکروانوی. جی یہی حال. وہ قاری احمد حسن کرنا پڑتا ہے بہت. جی جی. اور ایسا حضرت نا کہ وہ پورے جو بھی حوالہ دیتے ہیں ٹوٹل قرآن ہی سے حوالہ دیتے ہیں. قاری احمد حسن. جی. اور دوسری بات کی جو متواترہ حدیث ہے وہ ہاں کیونکہ ایک میں آپ کا مناظرہ سن رہا تھا جو ایک آپ کی کلپ ہے وہ یہ کون ہے امان. ہاں امان صدیقی. ہاں امان صدیقی جو آپ کہہ رہے تھے کہ بولو حضور تاج الشریعہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضور تاج الشریعہ حضرت امام حسین علیہ السلام. تو وہ تو اعجاز. ہاں ہاں تو وہ کہا کہ نہیں کہوں گا تو آپ نے بہت بری طرح سے اس کو آپ نے ذلیل کیا. بتائیے آپ کتنے لوگ یہ لوگ کس قدر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں بس. ہاں یہ جو نعرہ لگا رہا نا کریا بستی بستی کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ. ہاں بتائیے آپ یہ کتنا گمراہ کر رہے ہیں. ہاں اس کے بعد سے تاج الشریعہ بخشش کا ذریعہ. بتاؤ خود اپنی بخشش ہو جائے ان کی تو ٹھیک ہے. کیا کریں گے حضرت یہ سن کر یہ پوری دنیا کی بخشش کرائیں گے. پوری دنیا کی بخشش کیسے کرا سکتے ہیں بتا. جو آدمی اپنے ہی بخشش نہ کرا سکتا ہو تو دوسرے کیا کرائے گا. شفاعت تو ہمارے رسول فرمائیں گے. جی. اب یہ بتائیے آپ یہ لوگ کیا معلوم کیا سے کیا کیے جاتے ہیں بس سمجھ میں نہیں آتا ہے. جی جی. لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں ہٹ رہے ہیں تو دور ہو رہے ہیں الگ ہو رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم سمجھ جائیے کہ میں کٹر بریلوی تھا مگر یہ دیکھ کر ہاں میں ان سے منقطع کر لیا. یعنی بالکل کٹر تھے آپ پہلے بریلوی. ہاں پہلے کٹر بریلوی تھا. جو احمد رضا بریلوی کے شان میں گستاخی کرتا تھا میں ایک دم اپنے جان پر آ جاتے تھے. اچھا. جی جی. اب تو اس کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے. تو ایسا کیوں ہو گیا کیسے آپ کو یہ معاملہ ہوا. معاملہ یہ ہوا گستاخی رسول پر. اچھا ان کی باتیں کچھ دیکھ کے آپ الگ ہوئے. ہاں جیسے وہ سلام بھیجا ہے نا کہ ایک میرا رحمت میں دعویٰ نہیں چاہتی ساری امت کے لاکھوں سلام. ہاں تو ساری امت میں کفار و مشرکین یہود و نصارہ سب آ جاتے ہیں. اوہو کیا پوائنٹ آپ نکالا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے امت اجابت مراد لیا ہے تو اس میں بتایا تھوڑی ہے وہ بتا کے تھوڑی بھیجا انہوں نے سلام کہ میں امت اجابت مراد لے کے سلام بھیجا ہوں. تو یوں بھی تو سلام بھیج سکتے تھے شاہ کی امت اجابت پہ لاکھوں سلام. جی 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 جی. اگر بھیجنا تھا تو امت اجابت پہ لاکھوں سلام کہہ کے بھیجتے اس کی وضاحت کرتے نا. وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ شاہ کی امت اجابت پہ لاکھوں سلام. بس 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 ساری میں کہا تو آپ جو بتا رہا ہو خود آ گئے اس معاملے میں گرفت میں آ گئے. بہت زبردست گرفت آپ نے کی ہے. کیونکہ قرآن شریف کا یہ اعلان ہے کہ نبی اور ایمان والے لائق نہیں کہ جو کفار و مشرکین پر درود و سلام بھیجے. ہاں تو جب قرآن منع کر رہا ہے آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. ہاں یہ تو بچنے بچانے کو جو چاہتے کہہ دیتے ہیں. ہاں کہہ دیتے ہیں کہ وہ امت اجابت مراد ہے. ارے بھائی مراد ہے تو اس میں بتائے گا نا. ایسی تحریر الناس نے انہوں نے جو مراد لیا ہے اسے بھی مان لو. وہی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی اب نبی آئیں گے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے اور اس میں بھی اگر مگر کی شرط لگا رہے ہیں. وہ اگر بالفرض تسلیم کر لو مان لو جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قل ان کان للرحمن ولد کہہ دیجیے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو فانا اول العابدین سب سے پہلے میں عبادت کرتا.
جی تو اللہ نے بھی تو کہا نا اگر کہ اگر، تو اسی طرح انہوں نے کہا اگر بالفرض تسلیم کر لو، مان لو بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو جائے، یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی آئے گا، نہیں یہ جملہ ہے نہیں ہے. ہاں تو یہ ایسے یہ کہتے ہیں، جب یہ کہہ رہا ہے کہ فاضل بریلوی امت اجازت مراد لیا تو ایسی تحریر الناس میں بھی مان لو تم لوگ، وہاں بھی تعویلیں کر لو، کیا خیال؟ ہاں تو ہے. لیکن ان کو اپنی تعویلیں لکھتی ہیں، دوسرے کی کتابوں میں تعویلیں نظر نہیں آئیں گی. نہیں، وہ حماد رضا کہہ رہا ہے فرشتے کو لنگڑا بتا رہا ہے، مفتی مولوی حماد رضا مراد آبادی کہتا ہے کہ فرشتہ لنگڑا تھا، لنگڑا رہا تھا. استغفر اللہ، کافر ہو گیا، کافر. بریلوی نے کافر قرار دے دیا، نہ مگر نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ نکاح کیا. اور اس کے بعد سے پھر یہ بھی کہا نا کہ سارے لوگ سیدوں کے تلاش کریں گے مگر سید لوگ اعلیٰ حضرت. اب یہ حماد رضا نے کہا اب کافر ہو گیا، کافر. وہ تو اس نے نہ کلمہ پڑھا کھل کے، نہ نکاح کیا، اور آج تک بریلوی لوگ جتنے بھی بلا رہے ہیں وہ بھی اس فتوے میں جائیں گے کہ اسے کافر نہیں سمجھ رہے. تو میں شک فی کفری و عذابی بہت کفر، جو فاضل بریلوی نے لکھا ہے جو ان کے کفر میں عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے، یعنی جو گستاخی کرے. تو اس نے بھی فرشتے کی شان میں گستاخی کی، سیدوں کی شان میں گستاخی کی. اب جو ان کو بلا رہا ہے ان کا بھی نکاح ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا بتائیے آپ؟ جی ٹوٹے گا. جتنے بلا رہے ہیں ان کا نکاح ٹوٹیں گے جانتے ہوئے. جو بلا رہا ہے اس نے نہ کلمہ پڑھا بھی نہ نکاح کیا، کھل کے اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا سب کے سامنے اسٹیج کے اوپر. جی اور یہ مسلمان ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں نے فلاں فلاں گستاخی کی تھی، کفر بکا تھا، اور میں اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں نکاح کروں گا جا کے. بس اتنا کہہ جا سب کے سامنے، بس. لیکن یہ کہے گا ہی نہیں، نہ کہا آج تک اس نے. تو کعبے نہیں کرے گا صرف. اپنی میں ایک بات بتاؤں، اس میں ایسا ان کے منہ سے کیوں نکلتا ہے کفر؟ اس میں آپ نے غور کیا؟ نہیں، غور نہیں کیا. امین القاضی کے منہ سے کفر کئی بار نکلا، ایک بار نہیں کئی بار. جی محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب کا فتویٰ ہے، اس کے اوپر سخت فتویٰ ہے کفر کا، اس کے اوپر امین القاضی پر. جی. اور امین القاضی کو میں بتاؤں کون کون خلافت دیتے ہیں؟ جو ظاہر میں بریلی کو مانتے ہیں باطن میں بریلی کے مخالف ہیں، تو وہ امین القاضی کو خلافتیں دے رہے ہیں کہ اوپر سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلی، اور اندر سے کٹنگ کرتے ہیں کہ ہم تو امین القاضی کو خلافت دیں گے، بریلی والوں نے اس پر کیوں فتویٰ لگایا. جی. جو بریلی کے ماننے والے ہیں نا، امین القاضی کے اوپر فتویٰ ہے، اس کے اوپر کفر کا. تو اب ان میں کیا چل رہا ہے؟ بریلیوں میں پیروں میں آپس میں کہ جس کو بریلی والے کافر کہیں ہم اس کو مسلمان کہنا ہے. تو کائے کا ایمان ہے پھر تم لوگوں کا؟ پھر تم دھوکہ دے رہا ہو امت کو. ایک طرف کہتے ہو بریلی مرکز اعلیٰ حضرت مسئلہ کے اعلیٰ اللہ، دوسری طرف تم اندر سے کٹنگ کر رہے ہو کہ جس کو بریلی والے کافر کہہ رہے ہیں تم اس کو مسلمان قرار دے رہا ہو. جی. جو مسلمان ہے اس کو تم کافر قرار دیتے ہو. اس کو تم کافر قرار دے رہا ہو. کائے کہ تم بریلوی ہو، کائے کہ تم مسلمان ہو. یہی دیکھ لیجیے سید ہاشمی میاں اور حضور شیخ الاسلام. ارے وہ دیکھو ان کے اوپر بھی فتوے ہیں بریلویوں کے، تو انہوں نے ذبیحہ ضعیف قرار دے دیے تھے کہ دیوبند والے کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں. تو بریلوی لوگ پیچھے پڑ گئے. ارے ان بریلویوں کو تو ایسے لوگوں کو، ایسے مفتیوں کو تو بندر کی پوچھ لگا لینا چاہیے تاکہ لوگ انسان نہ سمجھے. میں تو حضرت مسجد نبوی کو اور حرم کعبہ امام کعبہ کو میں مومن سمجھتا ہوں. کون؟ میں. تو اس میں کیا پوچھنے والی بات کیا ہے؟ ان کے پیچھے میں نماز بھی پڑھا ہوں. بالکل پڑھنا چاہیے، اس میں کیا شک ہے. جی جب ہم جانتے ہیں کہ وہ انہیں کے سامنے گنبد خضرا ہے، حرم خانہ کعبہ ہے، اور راتوں دن خانہ کعبے کی زیارت کرتے ہیں، گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں، پھر مومن کیوں نہیں؟ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ جی آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ میں گھوسی امجدیہ. آپ گھوسی امجدیہ سے فارغ ہیں؟ جی. اور یہ تو بہت تعجب کی بات بتا رہا ہوں، آپ سے بات کر کے تعجب ہو جائے گا. جی. آپ پر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہے، وہاں سے فارغ ہیں آپ؟ وہ میرے استاد میں سے ضیاء المصطفیٰ صاحب. جی. ارے یہ تو بہت بڑی تعجب والی بات بتا رہا ہوں آپ. اس کو سن کے تو معلوم کتنے لاکھوں بریلوی الگ ہو جائیں گے آپ کی ہماری بات سن کے.
जी जी जी। मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया से लाखों बरेलवी अलग हो जाएंगे कि यार ये तो आंखें खोल दी क्या, अमजदिया से फारिग है। मैं तो ताज्जुब जी करा जी। कि आपने अमजदिया बोल रहे हैं, तो देवबंद से पढ़े होंगे कहीं इधर उधर से, आप तो बरेलवियों के मरकज से पढ़े हैं, दारू अमजदिया से। और ये ताज्जुब, आपकी बात सुन के तो लाखों बरेलवी अलग हो जाएंगे और आपको सवाब मिलेगा उसका। जी 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 जी। नहीं, हकीकत पसंद होंगे, न तो देवबंदी बनेंगे न बरेलवी, वो सीधा रास्ता अपनाएंगे जो कुरान में अल्लाह ने बताया, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। बस बस यही। अल्लाह फरमाता है एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमको सीधी राह चला। जी 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 जी। हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें यही कहते हैं अल्लाह हमको सीधी राह चला, न देवबंद वाली राह चला, न बरेली के इधर वाली राह चला, न बगदाद, न हमें इधर न उधर, हमें तो सीधी राह चला जो मक्का शरीफ मदीना शरीफ जाए। जी। है, अगर तुम दो शहरों के ये लोग प्रचार कर रहे हैं देवबंद बरेली, हम कहते हैं इनका ही मत करो, कोई जरूरत नहीं है। आप तो दो शहरों का प्रचार करना है तो शहर मक्का शरीफ और शहर मदीना शरीफ का प्रचार करो। बस 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 है, और हम, अरे आपने तो आपका आवाज सुन के बातें सुन के तो ताज्जुब में, खुद ताज्जुब में कि यार अमजदिया तो वो तो घोसी में जाउल मुस्तफा साहब पढ़ाते हैं, मुफ्ती शमशाद जिसने कहा था कि क्या है हाशमी हो क्या है मदनी हो, वो हम उसे मुसलमान ही नहीं मानेंगे जब तक वो आला हज़रत के नहीं मानेगा मसलक को। हाँ तो वो बोला है ना, वो उससे वो इस्लाम से खारिज हो गया। मुफ्ती शमशाद ये कहने से खारिज हो गया, मुझसे बात कर ले कोई भी दुनिया का बरेलवी, मैं खारिज करार दे दूंगा इस जुमले से, वो इस्लाम से खारिज हो चुका है। और मैं तो हिम्मत रखता हूँ उनसे मुनाजरा करने के लिए। अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ने आपको बहुत बुलंद हौसला अता फरमाया। जी जी, दुआ करते रहिए। अरे उसने कितनी कुफरिया बात बकी कि क्या है हाशमी हो क्या है मदनी हो क्या है बगदादी हो, यानी बगदाद शरीफ का रहने वाला हो, बड़े पीर साहब की औलादों में भी हो, बड़े पीर साहब की भी औलादों में हो, यही मतलब है उसका। क्या है बदायूं हो, अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला हो, हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे, ये मुफ्ती शमशाद ने कहा, जब तक मसला की हालत को नहीं मानेगा। अब एक मुरादाबादी मुकर्रिर क्या तशरीह कर रहा था इसी लफ्ज की, मरदूद मौलवी था, वो कोई आलिम वगैरह नहीं है जी जी। भाई ये खानकाहों में जाके खुशिया बर्दारी करता रहता है ओ सुनो, जितनी भी खानकाह के लोग हैं ना ये भी आला से बहुत डर रहे हैं। जी जी जी। और उनके मानने वाले इतना डर रहे हैं कि इन्हें अल्लाह का डर नहीं है, भाई इनका डर है कि आला हज़रत से डरो, इसमें ही कामयाबी है, ये इनका कुछ विचार हो चुका है। जी जी जी। और जब ऐसा विचार है तो हम काय को माने इनको। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर औलाद है कोई, चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, तो मेरा चैलेंज है, ना वो देवबंदी से डरेगा, ना बरेलवी से, न लहदी से, न मौदूदी से, न शिया से, न राबदी से, न चकलालवी से, किसी से नहीं डरेगा। नहीं आपका क्या यकीन कहता है अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई औलाद है, यानी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है वो सैयद है, तो क्या वो किसी से दुनिया में डर सकता है? क्या नहीं डर सकता। मेरा चैलेंज है, वो तो शेर बनकर खड़ा रहेगा कहीं भी। शेर बनकर क्या है देवबंदी हो, क्या है क्या का देवबंद, क्या का बरेलवी हो, कहेगा हाँ सहमत, क्या है देवबंदी हो बरेलवी, जो हक होगा वो बताएगा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है जी। नहीं वो देवबंदी की भी तरफदारी नहीं करेगा, ना बरेलवी की, ना इलाजीज की, ना मौदूदी, किसी की नहीं, जो हक बात होगी उसी को बयान करेगा। बस भाई गलतियां तो सभी में होती है ना, थोड़ी बहुत देवबंदी में, थोड़ी बरेली में, किसी में कम ज्यादा है तो सब में ही है, लेकिन देवबंद वाले इतना तो एहतियात करते हैं, काफिर कहने में तो एहतियात करते हैं ना वो लोग जी। वो तो बरेलवियों को भी काफिर नहीं कहते, वो बरेलवी रात दिन इनको काफिर कहते, सुबह शाम तक, सुबह से रात तक, शाम से, इनका तो वजीफा ही यही है, काफिर काफिर काफिर, देवबंदी काफिर। हजरत ये थानवी साहब का है ना कि जब उनसे सवाल हुआ कि आपको तो बरेली वाले आपको काफिर कहते हैं, तो उन्होंने वो कहा था ना कि हम किसी को काफिर कहने से बड़े एहतियात रखते हैं। ये उन्होंने तो इतना एहतियात किया है कि अहले हवा कहा है बरेलवियों को, बस अहले हवा, ये अहले हवा है। देखो थोड़ी बहुत कमी सब में ही है, देवबंद वालों में भी है कि कम से कम वो अपने आलिमों को नवाजें, जो इमाम हैं उनके आलिम हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा करें, 40-40 हजार करें, 50 हजार करें। और देवबंद वालों में एक और है कि कुरान शरीफ जो पढ़ने आता है उसको 1 रुपया भी नजर नहीं देते बहुत सी जगह,
جی अरे कम से कम कुरान शरीफ का मत दो, हम कौन कह रहा है, हम भी नहीं कह रहे, कुरान शरीफ की नियत से मत दो बिल्कुल। जब तुम मदरसों का ज़कात सदका जायज कर लेते हो हीला शरई करा कर, तो उसी तरह पे भी तो कुछ दे सकते हो इमाम को जो कुरान की तरावी पढ़ा रहा है, तो आप उस नियत से एक पैसा मत दो कुरान की नियत से, आप तो उसको नियत से अलग से दे दो, बुला के किसी के नजराने के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे दे दो जी, कि कम से कम उसके बाल बच्चे खाएं और अपनी जिंदगी की परवरिश करते रहें। और एक काम और करना चाहिए देवबंद वाले हजरात को कि इस दौर में तबलीग जमात के जहाँ जहाँ इज्तिमा होते हैं, उनको चाहिए कि हर जलसे में, इज्तिमा में लोग नाज शरीफ पढ़वाएं, यानी हर रोज जब भी शुरुआत करें तो ये लोग क्या है किरात से शुरुआत करते हैं, तबलीग जमात वाले नाज शरीफ नहीं पढ़वाते हैं लोग, और जबकि देवबंद वाले पढ़वाते हैं। आपने देखा होगा देवबंद वाले जो जलसे होते हैं उलमाए देवबंद के, वो लोग पहले किरात फिर नाज शरीफ पढ़वाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन चार चार नात पढ़वा लेते हैं जी। लेकिन तबलीग जमात वाला क्या मालूम क्या हो गया कि ये लोग नाज शरीफ नहीं पढ़वाते, जबकि जिन तबलीग जमात वालों को देवबंद वालों ने परवान चढ़ाया, दुनिया में उठाया, मशहूर किया, वो देवबंद वालों का तरीका आज भी है कि नाज शरीफ पढ़वाते हैं जलसे में, तकरीर वो किरात के बाद जी जी। ये नहीं पढ़वाते तबलीग जमात के लोग, तो क्या मालूम क्या है इनको, तो बस एक ही काम है, बस नमाजी नमाज। अरे भाई नमाजी तो फर्ज है, लेकिन इसके अलावा भी तो और फर्ज हैं। जी जी। ज़कात क्या फर्ज नहीं है, साहिब निसाब है तो ज़कात फर्ज है उस पर जी। ये लोग अगर ज़कात देना, तबलीग जमात वाले, मैं कह रहा हूँ चैलेंज से कह रहा हूँ, अगर तबलीग जमात वाले 100% ज़कात नहीं, सिर्फ 50% भी ज़कात दे दें, जितने भी लोग अभी हिंदुस्तान में, मैं चैलेंज दे रहा हूँ 88 152 53 598, अगर ये 50% पूरी ज़कात निकाल दें तो जैसी अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है उसकी ऐसी यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह 4 बनवाऊंगा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ। जी जी जी। हाँ ज़कात को एक मामूली पैसा थोड़ी कम थोड़ी साहब, इनके पास बहुत पैसा है। खाली गुजरात की ज़कात से जो तबलीग जमात के लोग हैं, इनकी गुजरात की अकेले की, एक पूरे गुजरात की नहीं, खाली भरूच जिले की तबलीग जमात वालों की ज़कात से मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना दूंगा जिसमें 2000 लड़का लड़की पढ़ सकते हैं पर्दे में। जी जी जी। और उनकी तनख्वाहों का भी मैं इकट्ठा इंतजाम करवा लूंगा 5 साल तक का। जी। ये भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, सिर्फ भरूच जिले के तबलीग जमात के लोग अगर ईमानदारी से ज़कात निकाल दे 2.5%, तो भरूच जिले में इतनी बड़ी फैक्ट्री में बनवा दूंगा, 2000 काम करे, 2000 लड़के पढ़े, ऐसा कॉलेज बनवा दूंगा। जी जी जी। अरे इतना पैसा है, आप भरूच जिले में चले जाओ तबलीग जमात वालों के पास कि एक एक आदमी के पास कई कई अरब है। अब 1 अरब रुपए की ज़कात 2.5 करोड़ होती है जी। तो ज़कात पे ध्यान नहीं दे रहा, खाली नमाज, तो भाई ज़कात नहीं निकालोगे तो नमाज कैसे कबूल होगी? नहीं नहीं, कुरान में बराबर से आया वाक़ीमुस्सलात व आतू ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो आपने सुना होगा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो ज़कात जो माने इन्हें ज़कात थे उनके खिलाफ क्या हुक्म दिया था? जी है? हाँ वो पढ़े। अब दूसरी बात है कि जितने भोपाल में इज्तिमा हो रहा है और भी जगह इज्तिमा होते हैं, अगर ये लोग कह देते हैं कि भाई हमारा मकसद ये होता है गश्त करने से, चिल्ले 4 महीने निकालने से, कि लोग नमाजी बन जाए, ठीक है, कोई मना नहीं करता इस बात को, तो मैं उन्हें एक तरकीब बता रहा हूँ तबलीग जमात वालों को, दुनिया के तमाम ऐसे लोगों को, कि भाई नमाजी बनाने कौन नहीं चाहता, मुसलमान आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस काय बरेलवी देवबंदी सब चाहते हैं कि मुसलमान नमाजी बन जाए, मगर मैं खाके गरी नवाज हज़रत ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा गरीब अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मैं चाहने मानने वाला हूँ, और उनका खाकी जिन भी समझो, मैं जिन हूँ, एक तरह से मैं ख्वाजा गरीब का जिन हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे आल हिंदुस्तान में घर घर नमाजी हो जाए, मैं एक ऐसी तरकीब बता दूंगा कि न तो तबलीग जमात वालों को गश्त करना पड़ेगा, न किसी के घर जाना पड़ेगा, और मुसलमान 5 टाइम का पक्का नमाजी बन सकता है, 1 नहीं करोड़ों की तादाद में। ये अगर 60 साल में बना पाए 1 करोड़ नमाजी, तो मैं कहूंगा कि मैं इंशाल्लाह आपको एक तरकीब बता रहा हूँ, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, न मुझे पैसा दो, अगर तुम उस पर अमल कर लोगे जो कुरान हदीस के मुताबिक होगा, मेरा मशवरा, तो उस मशवरे पे अगर अमल कर लिया तो आपको न चिल्ले लगवाने की जरूरत, न 4 महीने की, न गश्त करने की। तो वो कहें क्या मशवरा आपका? हमारा मशवरा ये है, अगर तुम मानो तो ठीक है, कि अगर भोपाल के इज्तिमा से ये ऐलान कर दो
कि मुझे एक फैक्ट्री चाहिए भोपाल में, खाली ऐलान कर दें इनके अमीर, बस एक ही ऐलान में भोपाल में फैक्ट्री तैयार हो जाए, ये मेरा दावा है। जी जी जी। अगर वो कहते हैं हाँ मुझे फैक्ट्री चाहिए, उसमें शर्त रख दो जो जो मुसलमान नमाज पढ़ेगा उसी की भर्ती होगी, उसमें आप 5 टाइम की नमाज भी सिखाओ और दुआएं भी सिखाओ, जो भी तरीके सिखाना सिखाओ। बगैर गश्त के नमाजी बन गया लोग, बगैर कोशिश के नमाजी बन गए। बना कि नहीं बना? बन जाएंगे बिल्कुल। अगर हर जगह हिंदुस्तान भर में ये ऐलान करवा देंगे भाई मुसलमानों को माल की भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है, आज मुसलमान नौकरी नहीं है और मुसलमानों को ऐसी जगह नौकरी करना पड़ता है, नमाजें कदा होती हैं जी, तो ऊंची सोच रखो ना। तुम पूरे हिंदुस्तान में फैक्ट्रियां बनवा दो, कारखाने बनवा दो, तो मुसलमान ऑटोमेटिक नमाजी बन गया करोड़ों की तादाद में। बना कि नहीं बना? बन जाएंगे बिल्कुल। तो फिर माली ताकत भी आ जाएगी, माली भी ताकत और जानी भी ताकत, और मुसलमान भी खुद जो काम करेगा कि यार हमें तो ऐसे ही नौकरी चाहिए थी, जब सुकून से नमाज पढ़े। ये तो अपने मुसलमान भाइयों की खुद का ही कारखाना, वो पाबंदी लगाना जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे आपकी एंट्री नहीं होगी जी। अरे कौन मुसलमान नहीं चाहेगा कि मैं नमाज ना पढ़ूं कारखाने में आके? सभी सोचते हैं। अरे अब जब उस पर पाबंदी लगी होगी भाई बेनमाजी का दाखिला नहीं है कारखाने में, अगर आप नमाज पढ़ोगे 5 टाइम तो आपको हम नौकरी पे रखेंगे जी। वो आप आधा घंटा दिन सिखाओ, 1 घंटा सिखाओ, पूरी रात सिखाओ, हम तो कह रहे हैं 1 घंटा अलग रख लो उसका शिफ्ट सिखाने का। जी। क्या इसकी जरूरत नहीं है मुसलमानों को जान की, माली चीजों की? आज मुसलमान आप जानते ही हो कितनी जगह नौकरी कर रहा है, कोई कैसे कमा रहा है, कोई कैसे कमा रहा है, कोई नमाज कदा करके कमा रहा है। जी। तो हमारे यहाँ क्या है, सोच ऊंची नहीं है मुसलमानों की, बहुत छोटी सोच हो चुकी है कि हमें तो अपना फिरका बढ़ाना है, हमें अपने फिरके की तबलीग करना है बस। जी। अरे इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम की दीन की जो अल्लाह ने दीन नाजिल फरमाया उसकी तबलीग करो, अपनी पार्टियों की तबलीग मत करो। जैसे ये दावत इस्लामी वाले, ये पाकिस्तान का इलियास है जी, ये अपने फिरके की तबलीग कर रहा है, ज़कात चंदे इकट्ठे कर रहा है, आपने देखा होगा जगह जगह गुल्लक रखवा रहा है। हाँ देखा है जी। हरे गुल्लक रखवा देता है और इसके अलावा घर घर में चंदा अलग करवाता है, 11-11 हजार रुपये के मेंबर बनवाता है इलियास काजी जी। बनवाता है कि नहीं? नहीं बनवाता है। और 50,000 रुपया एक अत्तारी को देता है इलियास काजी, एक अत्तारी को जी। और जो इनका चपरासी अत्तारी होता है उसको 15,000। जी। तो हम तो कह रहे हैं मुसलमानों में आप देख रहे हो कि आज लड़कियां कितनी भाग रही हैं स्कूलों से कालेजों से। तो अगर ये इज्तिमा से ऐलान कर दे भाई कॉलेज की भी जरूरत है, हमारे पर्सनल कॉलेज हो, कोचिंग हो, बापर्दा होते पढ़े, लड़कियां भी पढ़ाएं और लड़कियां पढ़ें, तो उन लड़कियों की भी नमाज कदा नहीं होगी। भोपाल में एक कॉलेज खुल जाए ताकि मध्य प्रदेश की जितनी लड़कियां यहाँ के कोचिंग करें, पढ़े, तैयारी करें बापर्दा और नमाज भी पढ़े। तो ऐसे हिंदुस्तान भर में कोचिंग खुलवा सकते हैं, तबलीग जमात के लोग भी खुलवा सकते हैं, देवबंद वाले भी खुलवा सकते हैं। हाँ सभी अगर सिर्फ ये अपने दिल के अंदर ये ठान लें कि हाँ हमको ये काम करना है, बरेली वाले भी खुलवा सकते हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है लेकिन नहीं खुलवाते, अपने अपने मदरसे खोल के बैठ जाते हैं कि हमारा बाप हमारा बेटा रहेगा, बेटे के बाद मेरा पोता रहेगा, मेरा पड़पोता रहेगा। ये अपनी जायदादें बना रहे हैं, मदरसे क्या बना रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जायदादें बना रहे हैं, जायदाद बना रहा है जरा। और दूसरी बात की ये नजराना 50-50 हजार 1-1 लाख का नजराना ये तय करते हैं। अरे ये इनके वही बच्चों को खिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी मुल्ला मौलवी बता दे मुकर्रर बरेलवियों का कि अगर मैंने उसके घर में अभी कुछ 10 सालों के अंदर अंदर खाना खाया हो उसके घर में जाके, जिसकी ये धंधा जिसका हो तकरीर का, एक मुकर्रर ऐसा हो हिंदुस्तान का जो ये कह दे कि हाँ आपने मेरे घर में आकर खाना खाया है, वो उसका धंधा हो तकरीर का रात दिन का 50,000, तो मेरे तो अभी उम्मीद नहीं है, कहीं खाया भी तो होगा तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उसको मैं देख के ही खाया होगा कि इसकी कमाई मुकम्मल हराम ना होगी। हाँ ये धंधा वाले मुकर्रर के घर तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ध्यान है कि मैं नहीं खाया अभी तक, काफी टाइम से, अभी से नहीं कई सालों से 15 साल काफी टाइम हो गया। जी जी। यही आपके ये मुरादाबाद का जो इमरान हंसी है, ये इसको मैंने बुलवाया, खतीबुल हिंद है, वो बहुत बढ़िया मुकर्रर है, लेकिन वो क्या है कि बस पैसा कमाने की लालच है, वरना आदमी अच्छा है। आदमी अच्छे तो हैं मगर ये तय करते हैं, बगैर तय की वो नहीं जाते। वो क्या करे, लालच घुसा हुआ है। मैंने उनको राजस्थान में बुलवाया था, कोटा के उधर, और यहाँ भी गोरखपुर में बुलवाया था। खतीब इंकलाब है वो अगर सही हो जाए ना बामल, तो हिंदुस्तान का इंकलाबी खतीब है वो। इमरान हंफी साहब है, इंग्लिश में भी बहुत पावरफुल है वो।
उनको हमने दावत दिया था ना, तो दावत दिए थे, दावत भी कबूल कर लिए थे। उसके बाद से बोले कि हमारा नजराना 50,000 है। अरे 50,000? जी जी जी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल गुलाम। तो बोले अब देखो कभी मुलाकात होगी तो कहना पड़ेगा उनसे, मगर मेरे ऊपर फतवा न लगा दें, वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कुफर का फतवा लगा दें कि तुम तो मरदूद हो गए, कुछ भी फतवा लगा सकते हैं। उसके बाद से मुफ्ती शहरियार रजा पूर्णिया बिहार का वो। अरे उनको मैंने बुलाया तो 40,000 रुपए पे मैंने बुलाया था 4 दिन के लिए शायद जी। 40,000 पे, जब ये ज्यादा मशहूर नहीं हुए थे। बाद में तो एक रात का 40,000 30,000 इनका हिसाब बन रहा होगा। तो हम खुद ही दावत दिए थे। वो बोले कि एक दिन का 20,000 है। 30,000? जी। ओहो अल्लाह अकबर। मैंने 4 दिन बुलाए थे 40,000 में। एक अंता में प्रोग्राम कराया था, एक सीसवाली में, और एक कराया था वहाँ पर 2 कोटा में कराए थे। एक छावनी में कराया था, एक स्टेशन पे कराया था। सबसे पहले रामपुर मिलकताज में ही मैंने ही बुलाया था उनको। सुवार के पास रामपुर है, मैंने ही बुलाया रामपुर में सबसे पहले। जी जी। 9,000 या 7,000 ऐसी कुछ रुपए दिए थे। अरे मैं कहता हूँ इन बरेलियों का लालच इतना बढ़ गया है कि लोग देवबंदी बनने को मजबूर हो गए कि यार ये तो 50,000 मांग रहे हैं। कोटा में आप आ जाना, देख लेना, कोटा में जाता हूँ, वहाँ 95% पहले बरेलवी थे, अब वो वहाँ पर 30% देवबंद वाले हो गए कोटा में, इनकी हरकतें देख के। अब यही देख लीजिए, ये गुलाम रसूल बलियावी। हाँ, ये कितना मांग रहा है? ये तो इसका डिमांड 80,000 है। 80,000। ओहो, इसको मैंने कितने बुलाया मालूम है? जी जी। इसको मैंने करीब 10 साल पहले बुलाया था 5,000 में, ललितपुर में, और उसमें 5,000 में। जी जी। 5,000 में मैंने बुलवाया ललितपुर में। अब आप बता रहे हो 80,000 क्या है? मुख्तार बहलवी को मैंने बुलवाया 10,000 में, ऐसी कुछ। और ये जितने भी मुल्ला मौलवी हैं इनको मैं बुलवा चुका हूँ। अब आप समझो, मैं भी इनको मुल्ला मौलवियों को बुलवा चुका हूँ, एक नहीं, मैं इतने मौलवियों को बुलवा चुका हूँ जिसमें से 20 तो इंतकाल कर गए दुनिया से कम बेश। अभी एक है ये, अभी ये तो मालूम नहीं है कहाँ के हैं, सैयद शब्बीर अली वारसी। ये तो जाने क्या क्या बकते रहते हैं, हर कुछ कह देते हैं, वो बेलगाम कह देते हैं। साहबा किराम की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। बस अहले बैत के फजाइल बयान करो, क्या ख्याल है? जी जी। आप अहले बैत के फजाइल बयान करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अब छींटा कसी बिला वजह साहबा किराम की शान में करना, उलमा ने मना किया है कि साहबा किराम के बारे में जो साहबा किराम का इख्तिलाफ है उसे बयान न किया जाए, अच्छा गुमान रखा जाए। जी। हज़रत सैयद हसनैन मियां नज़मी मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना आपने? मारहर वाले। जी जी। उन्होंने एक शेर कहा था, मैं आपको सुना देता हूँ तरन्नुम के साथ। सुनाऊं? जी जी सुनाइए। एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नज़ा है, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नज़ा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान कर्रार का क्या कहिए। एक और सुन लो, उन्हीं का शेर है, गारे हिरा से मुताल्लिक़ है, हज़रत अबू बकर की शान में। वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, वो गार के जिसने एक तारीख बनाई है, उस गार का क्या कहिए, उस यार का क्या कहिए। बेशक। मैं कह रहा हूँ कि आप अहले बैत की रात दिन फजीलत बयान करो, मगर सहाबा किराम के बारे में कोई भी छींटा कसी न करे, नहीं तो फेल हो जाता है। नहीं अगर तो अभी तो कुछ नहीं तो बेशुमार उनका क्लिप मैं सुना हूँ। इनका शब्बीर वारसी, शब्बीर वारसी का बोलता तो अच्छा है, बहुत जबरदस्त बोलता है। नहीं तो सहाबा पर तो अभी कुछ नहीं बोले। नहीं बोला तो कामयाब होगा, और जिस दिन उनके खिलाफ बोलेगा, जैसे उनकी शान में बोले, अगर खिलाफ बोलेगा तो वहीं की वहीं फेल हो जाएगा, जाम लग जाएगा।
सिर्फ अहले बैत की फजाइल ही पर जैसे उनकी अबुल अला टोटल मौदूदी के ऊपर जाम लगा है ना, वो इसी वजह से लगा है कि सहाबा किराम की शान में जो उन्होंने गुस्ताखी की वहीं से फेल हो गए, नहीं तो कौम के आज हीरो होते पूरी दुनिया के अंदर अबुल अला साहब मौदूदी। जी। तो उनकी जो भी बयान मैं सुना हूँ सब फजाइल अहले बैत पर ही सुना। वो तो मैं तो कह रहा हूँ रात दिन फजीलत बयान करो, लेकिन कोई किसी भी तरह से छींटा कसी न करे। यही सहाबी की शान हमें में दोनों को लेके चलना है, अहले बैत को भी और सहाबा किराम को भी। अहले बैत के बारे में तो हदीसें बहुत हैं, हुजूर का फरमान है, दो चीजें तुम्हारे दरमियान में छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, एक मेरी सुन्नत। एक मौके फरमाया कुरान मेरी फितरत यानी अहले बैत। जी। अब बरेली वाले जो है पूरी दुनिया में अहले बैत के नाम से जलसा नहीं करते हैं, मेरा चैलेंज। जलसा भी नहीं करते हैं और जो अहले बैत का जिक्र करते हैं हाँ, उसको ये बुरा समझते हैं, शिया समझेंगे या शिया बना देंगे। अगर मैंने कह दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो बरेलवी की सुरीन जो है कि फना फिन्नार ना हो जाए कि तू इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम क्यों कह रहा है, इमाम हसन को अलैहिस्सलाम क्यों कह रहा है। मेरी कितने से बात होती है तो कहते हैं नहीं कहेंगे इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, नहीं कहेंगे। एक बम्बई का था मौलवी, वो कहता था मुझसे कि मैं नहीं कहूंगा इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम। तो मैंने क्या, बड़े पीर साहब ने लिखा है, उन्हें तो तालिबीन ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम, हजरत अली को अलैहिस्सलाम। तो कह रहा कि मैं पहले देखूंगा अरबी में, तो कह रहा हो सकता है उर्दू में मिस्टेक हो, कोई ने मिला दिया हो, इराक किया हो। तो वो उसने अरबी की किताब देख ली बड़े पीर साहब की, नेट में से निकाल के। तो बाद में मुझे फोन करता है, कहता है मैं बरेली वाली की बात नहीं मानूंगा, मैं इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहूंगा कि मैंने अरबी में निकाल के देख लिया नेट से कि बड़े पीर साहब ने अलैहिस्सलाम ही लिखा है। तो ये तो बरेली वाले बड़े पीर साहब की भी नहीं माने, नहीं उनके सिलसिले में मुरीद करते हैं लेकिन नहीं माने उनकी बात को। नहीं मेरे सामने आना, मैं अख्तर हुसैन काजी नंबर देता हूँ 88-152-53-598। ऑल वर्ल्ड कोई भी बरेलवी यहाँ से इंग्लैंड तक, कमरुज़्ज़मा आदमी साहब तक, और जितने भी उनके मानने चाहने वाले हैं, दावत इस्लामी के लिए काजी से लेकर पूरे पाकिस्तान तक, कराची तक इनके मानने चाहने वाले हों, आए मुझसे बात करें। मैं हज़रत ख्वाजा गई नवाज अजमेरी का जिन हूँ, जिन। मैं उनको बता देता हूँ कभी कभी कि मैं जिन हूँ ख्वाजा गई नवाज अजमेरी का है। जो इस्लाम ख्वाजा साहब ने फैलाया, तुम इस्लाम को आज जो है कि तमाशा बना दिया है कि देवबंदी, बरेलवी, अहले मौदूदी फिरकों में बांट दिया मुसलमानों को। और अब मुसलमान बेचारा शादी कैसे करे, मान लो अहले हदीस में ही मुसलमान है, देवबंदियों में भी है, बरेलवियों में भी है, मौदूदियों में भी है, सल्फियों में, शाकिरियत, सब में मुसलमान बटा है। तो अब ये लड़कियां बेचारी कहाँ जाएंगी आगे चल के, इनका क्या असर होगा फिर। एक शहर में कहीं देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है, मौजूद 4-4 जमातें एक शहर में रहती हैं। जैसे कोटा में चल जाओ आप तो देवबंदी भी है, बरेलवी भी है, अहले हदीस भी है, मौदूदी भी है, तो यानी जमात इस्लामी से भी अटैच है। तो अब इन लड़कियों का तो बुरा असर हो जाएगा ना बेचारियों का, जो हमारी माए, ये बेटियां हैं, ये बहनें हैं, ये आने वाले वक्तों में इनकी कैसे शादी होगी फिर। बरेली वाला तो ये भी कहता देवबंदी नहीं आएगा शादी में, फिर देवबंदी नहीं आएगा तो क्या तेरे बाप से निकाह हुआ उस लड़की का है। वो लड़की कहाँ जाएगी बेचारी, 1-2 लड़की थोड़ी, करोड़ों लड़की हैं मुसलमानों की, इनके निकाह भी तो होना है ना। फिर गैर मुस्लिमों के साथ भागना है, वो भाग रही है, वो अच्छा रहेगा इनकी नजर में है। अरे कम से कम गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उससे बेहतर है कि हमारे मुसलमान किसी भी फिरके को दे दो, बस शर्त है कि वो फिरका गुस्ताखी न करता हो किसी की शान में, न सहाबा की शान में गुस्ताखी करता हो, न अहले बैत की, न औलिया किराम की शान में। क्या ख्याल है? जी बस उसको समझा दिया जाए, कभी भी तुम औलिया किराम की शान में गुस्ताखी नहीं करोगे, कभी सहाबा किराम की शान में नहीं, कभी अहले बैत की शान में नहीं, बस नॉर्मल रहोगे जैसे हमें जो कुरान हदीस में है वो मानो आप, बस जो औलिया किराम ने लिखा वो मानो आप। क्या ख्याल है? जी। अब मैं जो कहता हूँ, हिंदुस्तान में अगर किसी ने तारीखी काम किया है तो वो एक आलिम है जिसने सबसे बड़ा काम किया है हिंदुस्तान में। जी। कौन से आलिम है बताइए? जिसने पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम किया कि जो आज से 50 साल 100 साल तारीख में अभी इतना बड़ा काम नहीं किया किसी ने भी, करीब 100 साल तारीख में कम बेश। तो कौन है हजरत? वो अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र ज्यादा नहीं, 65 साल है। वो है हजरत शेख गुलाम मोहम्मद साहब उस्तानवी, जो अक्कल कुआं में चलाते हैं मदरसा, महाराष्ट्र अक्कल कुआं इशाअतुल उलूम के नाम से। जी। जिसमें 14,000 तो लड़के हैं। अब आप अंदाजा लगाओ, 14,000 लड़के, उसमें कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज और डी फार्मेसी डी फार्मेसी और इंजीनियरिंग और वकालत भी उन्होंने पास करवा ली। 14,000 बच्चे पढ़ता है।
1 घंटे में 4000 रोटियां निकलती हैं, मशीनों से रोटियां बनती हैं वहाँ पर। जी जी जी। अब अंदाजा लगाओ, जहाँ 14,000 लड़के पढ़ रहे हो, तो दारुल देवबंद में भी इतने नहीं है, नदवा में भी नहीं है। मैं 14,000, अभी ज्यादा पुरानी तारीख नहीं है, अभी है 35 साल पहले बनाया उन्होंने कमबेश जी। 35 साल में कितनी बड़ी तरक्की करी। आज आदमी देखेगा तो देखते ही रह जाएगा। हजरत मौलाना शेख मोहम्मद बुस्तानी साहब ने जो मदरसा बनाया, बहुत जबरदस्त। और उसके अलावा 7,000 मस्जिदें बना चुके हैं अब तक। जी जी। कितनी हजार? 7,000। माशाअल्लाह। आदमी को 2-4 मस्जिदें बनाने में कितना टाइम लग जाता है, वो 7,000 बनवा चुके हैं। और कई सौ मदरसों का वो संचालन कर रहे हैं, यानी खुद पैसा देंगे, खुद पैसा भिजवाएंगे। हमारे यहाँ करीब में मुरवा से उन्होंने पैसा भिजवाया, बहुत पैसा भिजवाया है, मदरसा बनाया हमारे यहाँ लड़कियों का। लड़कियां ही पढ़ती हैं बापर्दा तरीके से, लड़कियां लड़के सब। और इसके अलावा यहाँ पर ये कोटा के पास है झालावाड़ पाटन, वहाँ पर पैसा भिजवाया है। उनके याद तो हो सकता है कुछ दिन बाद कोटा में भी मेरे से मुलाकात हो जाएगी, तो मैं कहूँगा आप तो कोटा में भी एक शाख कायम कर दो साहब। मैं आपको आदमी तैयार करवा के दे दूंगा, अच्छे बढ़िया आलिम भी मिल जाएंगे आपको, और आपके हम मिजाज मिल जाएंगे। आप कोटा में शाख कायम करो तो इंशाल्लाह कोटा से जो है गुमराही खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या ख्याल? हाँ, ख्याल अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे ताज्जुब हो गया, मैं कि जामिया अमजदिया वाले ने, मैं इसको कितने बार ताज्जुब करूं कि यार जामिया अमजदिया से फारिग अल्लाह ने आपको इतना अच्छा मिजाज दे दिया। यानी मीडियम दर्जे का मिजाज होना चाहिए, एतदाल वाला मिजाज हो। यही नहीं, मैं बरेलियों में बैत भी हुआ था। किससे बैत हुए थे आप? बैत हुए थे अजीज मिल्लत से। अरे अब्दुल हफीज साहब से? जी। हाँ, जो हाफिज मिल्लत के लड़के हैं ना, मुफ्ती मौलाना अब्दुल अजीज साहब। जी। हाँ, तो बात मैंने तोड़ दी। क्या बात है, वाह। आज जब कुछ फेर हासिल नहीं होगा रूहानी, तो फिर आदमी क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा। बैत में आप उनसे हो सकते हो, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब इलाहाबाद के, बहुत बढ़िया पीर है, अच्छे आलिम। जी जी। और तो मैं बैत हुआ था फिर इनसे यहाँ जाकर भिवंडी में। अच्छा, कौन है? पीरे तरीक़त हज़रत सूफी शेख मोहम्मद सलीम शाह कादरी। अच्छा, कहाँ के हो? ये तो रहने वाले थे गोंडा का। अच्छा, सलीम शाह साहब कादरी हैं? उनसे आप बैत हुए बात। चलो, बहुत अच्छा रहा, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा नवाजा है। इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको आलमगीर यानी आलम पर नजर रखने वाली नजर अता फरमाई। कि हमें आलम पे नजर रखना चाहिए। वो शायर मशरिक ने कहा ना, मोमिन की शान के गुम है उसमें आफाक जी। और हुजूर का फरमान है, तकू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से डरो, बेशक वो अल्लाह के नूर से दिखता है जी। अल्लाह के नूर से दिखता है। अभी मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा तो आप ताज्जुब करेंगे। पीलीभीत में जो खानदान मुसलमानों को बिला वजह काफिर कहता है ना, पीलीभीत का हशमती जी जी, इस पूरे खानदान में कुरान का हाफिज नहीं है। नहीं, पीलीभीत में है। और ये जो आपके अशरफिया मुबारकपुर में जो मुफ्ती निजामुद्दीन है, वो भी तो हाफिज नहीं है। न हाफिज हैं, न कारी हैं, न उनको कुरान पढ़ना आता है, न बदर आलम को कुरान सही पढ़ना आता है। और उसके बाद से अल्लामा जैल मुस्तफा भी तो हाफिज नहीं है। वो भी नहीं है। मेरी उनसे कई बार बात हुई है, कई बार। तो वो हाजिर नाजिर के मसले में सही जवाब न दे पाए। अल्लामा जैल मुस्तफा साहब, मेरे रिकॉर्डिंग है, मेरी डली हुई है यूट्यूब पे। जी जी जी। भाई, हाजिर नाजिर का मसला फाइनल करिए। आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर हैं, तो आपके आदमी फिर सिगरेटें क्यों पीते हैं, हुक्के क्यों पीते हैं, बिड़ियां क्यों पीते हैं? जब तुम्हारा अकीदा है कि हुजूर हमें देख रहे हैं, फिर तुम कहते हो अल्लाह भी तो देख रहा है। अल्लाह को तो तुम कब ये कहते हो कि अल्लाह ताला को तो तुम मानते ही नहीं हो कि अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है। जी जी। बरेली मैंने करता नहीं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जो माने वो काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कहता बरेली, उल्टा अकीदा बताता, उल्टी गंगा बहती है इनकी। अब कहता है बरेली, कहता है कि अगर अल्लाह को कह दिया हाजिर नाजिर है तो काफिर हो जाएगा, कि जिस्म मानना हो जाएगा जी। यानी कितना पागल बनाता है। कौन इस तरह इस नियत से कौन कहता है कि अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है तो जिस्म के साथ? किस मुसलमान का यकीन? कोई पागल का भी ऐसा अकीदा नहीं होता, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नहीं, ऐसा किसी का नहीं है।
ابھی میں ہوم منسٹر جناب پاورفل ہوم منسٹر جناب مان شریمان حضرت امت شاہ صاحب کا میں کچھ بھاشن سن رہا تھا، سنسد میں بیان کر رہے تھے، تو بیچ سنسد میں انہوں نے کہا کہ اوپر والے سے تو ڈرو، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے سے ڈرو، کتنے غیر مسلم یعنی یہ اس بات کو کہتے ہیں، اور یہ بریلی والے کہتے ہیں اگر یہ کہہ دیا اوپر والا جانے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ اور انہوں نے تو تماشا بنا دیا ہے دین اسلام کا، اور ان سے پوچھو جو فلسطین والوں کے لیے دعا کر رہا ہے وہ کیا ہوا؟ جب تم دیکھ کے بہت مسلمان مانتے ہو، کسی کے ایمان کی پہچان کر کر کے ہی تم اس کے ایمان کی گواہیاں دیتے ہو اور بلا وجہ تم کافر بناتے ہو، تو تم نے فلسطین والوں کو بغیر دیکھے کون سا دوربین تمہارے پاس امریکہ سے آیا تھا بریلی میں جو تم نے ایک دم کہہ دیا فلسطین والوں کے لیے دعائیں کرو؟ یہاں تو تم بات بات میں ندوے والوں کو کافر بناتے ہو، دیوبند والوں کو بناتے ہو، مظاہرون والوں کو بناتے ہو، جو درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، ان کو تو تم کافر بنا رہے ہو آنکھیں بند کر کے۔ اور فلسطین والوں کے لیے کہہ رہا دعا کرو کہ وہ سنی ہے، سنی تو ہے ہی، لیکن جس حساب سے تم سنی مانتے ہو اس حساب سے سنی کہاں، وہ تو وہاں بھی ہے اس حساب سے، خالی نعرے بھی لگاتے ہیں وہ فلسطین کے لوگ۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جب سے یہ جھگڑا چھڑا ہے وہاں کا، تب سے ہم لوگ اس کے بارے میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہے نا؟ فلسطین والوں کے لیے، ہاں فلسطین والوں کے لیے ہم لوگ نہیں، آپ تو دعا کر رہے ہو، دیوبند والے کر رہے ہیں، ندوی والے کر رہے ہو تو صحیح ہے، لیکن یہ بریلوی کیوں کر رہا ہے؟ بریلوی کو تو تحقیق کرتا ہے نا، جیسے امام حرم کو مسلمان مانتے نہیں بریلی والا، مسجد نبوی کے امام کو نہیں مانتا، پھر وہاں والوں کو کیوں مان رہا ہے؟ کیا کہہ رہا کہ وہ سنی ہے، تو نے کون سے دوربین سے دیکھا جو تیری طرح سنی ہے؟ سنی تو سبھی ہیں، دیوبندی بھی سنی ہے، ندوی بھی سنی ہے، بریلوی بھی سنی ہے، تو نے کس دوربین سے دیکھا جو تیری طرح سنی ہے؟ فلسطین کے لوگ کٹر بریلوی ہیں۔ ایک آڈیو دکھا دے فلسطین والوں کی، جس میں ایک آڈیو میں کہہ دیں کہ ہم دیوبند والوں کو نہیں مانتے، ہم بریلی والوں کو مانتے، ایک آڈیو بتا دے پورے فلسطین کے ایک عالم کی، یہ ایک آڈیو میں کوئی امام وہاں کا یہ کہہ دے کہ ہم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایسا ایک آڈیو بتا دے بریلی کوئی بھی فلسطین والوں کی، ایک آڈیو نہیں بتا سکتے زندگی بھر۔ میں تو حضرت کعبہ شریف میں 5 دن میں رہا ہوں وہاں پر، کعبہ شریف میں، کعبہ شریف میں آپ نے تو سب دیکھ ہی رکھا ہوا حالات وہاں کے اماموں کے، کتنے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں وہاں کے امام، بہت زبردست عالم ہے وہاں کا۔ اچھا یہ بتاؤ انڈیا کا کوئی بھی قاری کیا وہاں جیسے امام کی طرح قرأت کر لے گا؟ جبکہ انڈیا میں ایک قاری نہیں ہے، لاکھوں قاری ہیں، دیوبند والوں میں لاکھوں قاری ہیں، کوئی نہیں ویسا قرأت کوئی نہیں کرے گا جیسے وہ لوگ قرأت کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی نعوذ باللہ کوئی بد مذہب بد عقیدہ کیا ایسی قرأت کر سکتا ہے؟ یہ تو سالے جنے کیا کیا بکتے رہتے ہیں۔ ان بریلیوں سے کہا جائے کہ اگر تم کہتے ہو ہاں کافر بھی قرآن ایسے پڑھ سکتا ہے تو کہنا چیلنج ہے، پوری دنیا سے ایک کافر لیا جس نے کلمہ نہ پڑھا ہو وہ امام حرم کی طرح قرأت پڑھ دے تو کہنا ہم تیرے غلام بن جائیں گے بریلوی۔ اگر تو کہنا ان کو سکھانے پڑھانے کی بھی کوشش کرے گا نا تو وہ قرآن کو سیکھتے پڑھتے ہی مسلمان ہو جائے گا۔ جی سوچے گا یار ایک جواب تو دے دو، کسی کافر کو لے آؤ، عیسائی کو لے آؤ، یہودی کو لے آؤ، اسے سکھاؤ تاکہ اثر قاضی کو جواب دے دے اپن امام حرم کی طرح مشق کراؤ، چلو صاحب قاضی صاحب تم بھی کراؤ، ایک قاضی جمال صاحب جو گھوسی میں پڑھا رہے ہیں تم بھی کراؤ، قاضی احمد جمال صاحب مشق کراؤ، امام حرم کا مقابلہ کرانا ہے، اثر قاضی کو جواب دینا ہے۔ ارے وہ مشق کرنے کا کسی کافر کو لے بھی آئیں گے نا، یہ کہیں سے ہندوستان سے، امریکہ سے، فلسطین سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، تو وہ پڑھتے پڑھتے قرآن مسلمان ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا بالکل۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن آسان کر دیے یاد کرنے کے لیے، تو یہ اسی کو آسان ہوگا جو ایمان والا ہے۔ جی میرا آلبرٹ چیلنج ہے، آلبرٹ کہ اگر دیوبند والا کہتا ہے بریلی والے مسلمان نہیں، دیوبند والا تو کہتا نہیں، لیکن جو کچھ غصے میں کہتے ہیں مشرک یا بدعتی، وہ خالی بدعتی کہتے ہیں، مشرک بھی سب نہیں کہتے، اکا دکا کہہ دیتے ہیں، تو اکا دکا کی بات نہیں مانی جاتی۔ عام طور سے دیوبند والے کوئی بھی مشرک نہیں کہتے، صرف بدعتی کہہ دیتے ہیں یا اہل وقت۔ تو میرا چیلنج ہے کہ اگر کوئی مشرک مانتا ہے بریلیوں کو، کیا ہے بھوپالی ہو مجھ سے ملے، کیا ہے اندوری ہو مجھ سے ملے، اگر اندوری کہتا ہے تبلیغ جماعت والے دیوبند والے مسلمان نہیں، تو اندوریوں کو چیلنج، وہاں جتنے عالم ہیں، وہاں کے جتنے مفتی ان کو چیلنج، بھوپال کے مفتیوں کو چیلنج، یہ اس بات کا کہ اگر تم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، میرا چیلنج اطہر حسین قاضی کا، میرا نمبر 8852535598، آل ورلڈ میں اگر کوئی بھی بے ایمان یعنی کافر قرآن کا حافظ ہے تو آجا میرے سامنے سنائے، میرے سامنے پورا قرآن اور 2 لاکھ روپے لے کے جائے،
اور 30 गलतियां भी मैं मान लूंगा, चलो हो सकती है इतनी गलती, 30, 50, 60, एक पारे में 2 गलतियां भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, चलो जी 60 गलतियों के साथ भी पढ़ के बता दे, मगर मैं सुनूंगा और 2 लाख रुपए नकद दूंगा, ले जा 2 लाख, मगर शर्त है कि वो ईमान वाला ना हो, काफिर हो, काफिर कुरान का हाफिज ना हुआ है 14 साल में, न कयामत तक होगा। इसलिए हम मानते हैं कि देवबंद वाले बरेली वाले दोनों मुसलमान है, दोनों में कुरान के हाफिज होते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा एक बात बताइए, ये लोग बरेलवी लोग जो अहमद रजा खां बरेलवी को जो बढ़ाए हैं, ये जैसे बयान करते हैं कि आला हजरत जब गए थे हज करने के लिए, तो उनको ये हुआ कि हज की नमाज वहीं पढ़ाएंगे, तो वो लोगों ने क्या किया कि मेंबर पर कुरान शरीफ पर कुरान रख कर उसके बाद से ढक दिए कपड़े से, और उसके बाद वो बैठ गए, उसके बाद मेंबर शरीफ पर वो बैठ गए। अच्छा। तो फिर उसके बाद से फिर ये सवाल हुआ कि ये बताइए कि जो कुरान शरीफ पर बैठ जाए, खड़े हो जाए, उसका क्या हुक्म है? तो आला हजरत ने जवाब दिया कि उसको कत्ल करना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आला हजरत ने कहा कि ये बताओ एक कुरान पर कितने कुरान रखी जा सकती हैं? तो अहले मक्का वालों ने कहा कि उसकी कोई हद नहीं है कि कितने कुरान रखी जा सकती हैं, बहुत से कुरान रखी जा सकती हैं, कुरान का तो रहता ही है। तो इसके बाद फिर ये बरेली लोग बताते हैं कि आला हजरत ने अपने सीने को फाड़ा, तो कहा कि देखो मैं भी साहिब कुरान हूँ, कुरान ही हूँ। उनके सीने में पूरी आयत भरा हुआ था। तो हम कहते हैं कि जब इतनी सलाहियत थी, तो फिर वहाँ के लोगों को बरेलवी क्यों नहीं बना दिए? क्या बात कही आपने, क्या बात कही। अनवारुल बयान में लिखा है कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ के उलमा ने, इमामों ने मुफ्ती आजम हिंद से कुरान करीम पढ़ने की इजाजत ली। जो हाफिज कारी ना हो, उससे वहाँ के कारी आलिम हाफिज इजाजत लेंगे, और फिर तमाम उलमा, ये अनवारुल बयान में लिखा, गप लिखी गप। अरे जब अभी मुफ्तियान का भी इंतकाल हुआ है 40 साल पहले, जब उनके वहाँ शागिर्द हैं, तो फिर तुम्हारे इमाम क्यों नहीं मर रहे मक्का शरीफ मदीना शरीफ में? अरे आपने सही बात पकड़ी। असली में मैं बताऊं आपको, ये जो काफिर कहते हैं, तो अल्लाह ने इनको वहाँ की जमात से भी महरूम कर दिया है। ना तो तुम मक्का शरीफ में नमाज पढ़ सकते हो, ना मदीना शरीफ की किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। ये लोग जमात से एक भी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे लोग, और इनके जुमे भी कज़ा होते हैं। ये अपना ईमान वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं, जब हज करने जाते हैं ना, तो अपना ईमान वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। वापस इंडिया में आते हैं तो कोरे आते हैं। हुजूर का फरमान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पुश डाल दिया जी। तो अब ये 7 जुमे छोड़ के आते हैं, 40 दिन में हज करने जाते हैं, तो इन्होंने इस्लाम तो वहीं पसे पुश डाल दिया। मैं नहीं कह रहा, हुजूर का फरमान है। हुजूर ने फरमाया 3 जुमे छोड़े जी, तो अब ये 7 जुमे छोड़ के आ रहा है, कहाँ से अपने आप को क्यों मुसलमान कह रहा है? तो वो भी मुसलमान तो नहीं है। और हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। आपने हदीस पढ़ी होगी, इत्तबऊ सवादल आदम, सवाद आदम की इत्तिबा करो, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। तो पूरी दुनिया का मुसलमान आलिम आकर, कारी आकर, मुफ्ती आकर, मुहद्दिस आकर, बड़े से बड़ा मुहद्दिस आकर इमाम हरम को मुसलमान मान रहा है। जामे अजहर के उलमा भी इमाम हरम को मुसलमान मानते हैं। जामे अजहर ये खुद पढ़ने जाते हैं बरेलवी, वहाँ के तमाम उलमा एक फतवा बरेलवी दिखा दे, मैं इनकी गुलामी कर लूं कि जामे अजहर का एक फतवा ऐसा हो कि जो ये कह दें इमाम हरम मुसलमान नहीं है, मस्जिद नबवी के इमाम मुसलमान नहीं, मैं इनकी गुलामी कर लूं बरेलवियों की जी। लेकिन नहीं बता सकते, जिंदगी भर ये सिर्फ झूठ बोलेंगे कि जामे अजहर वाले बरेलवी हैं। बरेलवी नहीं है जामे अजहर वाले जी। वो तो सुन्नी है, लेकिन इनकी तरह बरेलवी है नहीं, इनको मानते ही नहीं है इन लोगों को। वो लोग न इनके अकायद मानते जामे अजहर के लोग। खरसंदा वाले भी तो नहीं मानते हैं। कहाँ के? खरसंदा। अरे बिहार में कितनी खानकाह जो है नहीं माने, तैगैया खानकाह है और बहुत सारी फुलवारी शरीफ है बिहार में, वो लोग नहीं मानते इनको। पहले मानते थे बरेली वालों को, बाद में नहीं मानते जी। देखो कुरान का हाफिज जब होता है देवबंद बरेलियों में लाखों में, तो बरेलवी अवाम का कसूर नहीं है। इनको जो धक्के दिए जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, तो बेचारी बरेलवी अवाम तो कुरान की हाफिज हो जाती है। लेकिन जिनको जो ये गुमराह करने वाले हैं, पीली भीत वाले हैं, अब ये गुमराह कर रहे हैं, तो इनके अंदर कुरान का हाफिज नहीं। और वो खानदान रिजिया,
खानदान रजिया में भी अभी तक नहीं हुआ है, शायद 70 साल से कोई भी कुरान का हाफिज नहीं हुआ है। नहीं। मेरी तहकीक है, अब कोई जवाब दे दे कि किसी ने पढ़ाया हो खानदान रजिया में से पूरा कुरान कहीं पढ़ाया हो हिंदुस्तान में तरावियों में, तो बता, मुझे साबित कर कि यहाँ बम्बई में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, कलकत्ता में पढ़ाया, या बरेली में किसी भी एक मस्जिद में पढ़ाया हो, तो बता, साबित कर। जिन चारों को काफिर कहते हैं, जिन चारों को बरेली वाले, उनके पूरे खानदान हाफिजों से भरे हुए, मैं चल के मैं बताऊंगा। चलो, थानवी साहब के खानदान में हाफिज मैं बताऊं, पूरे खानदान में कासिम नकवी साहब के खानदान में मैं बताऊंगा ना, मेरे साथ चले और ये बता, मुझे लेके चले कि खानदान रजिया में कितने हाफिज हैं, क्यों नहीं है हाफिज। हाफिज तो ईमान वाले ही होगा, अल्लाह ने उसी को तौफीक दिया है, ईमान वाले को ही वही हिफ्ज करेगा, और कौन करेगा। अगर कितना काफिर कर सकता है तो ले, पूरी दुनिया में से एक भी काफिर ले, 2 लाख रुपए मुझसे लेके जा, तू किराया भाड़ा भी दूंगा, 2 लाख रुपया भी दूंगा, पूरी दुनिया में से ढूंढ ढांड के बुला ले। अरे यहूदी लोग आलिम बनाते हैं छुप छुपा के प्लानिंग के तहत, लेकिन कारी हाफिज नहीं बना सकते वो लोग, यहूदी लोग। और वो आलिम भी हमारी तरह आलिम थोड़ी होता है, जैसे आलिम इंडिया के होते हैं, ऐसा नहीं। वो उनके ऊपर नुकात वारिद थोड़ी होते हैं, उनके कल्ब के ऊपर सीधे साधे कोरे कारे बन जाते हो, तो कोरे कागज होते हैं, बस सीधा सीधा इल्म पढ़ लेते हैं। क्योंकि इल्म के बारे में ये भी लिखा है कि इल्म जो है गुनाहगार को नहीं दिया जाता, इल्म एक नूर है जो गुनाहगार, वो उन्हें इल्म मिल जाता है। यहूदियों को आलिम बनाते हैं, यहूदियों में कोई जगह इंग्लैंड में या अमेरिका में कोई जगह में, तो वो आलिम तो बना सकते हैं, लेकिन हाफिज नहीं बना सकते यहूदी। और आलिम भी ऐसा नहीं जैसे इंडिया के आलिम होते हैं, बड़े बड़े आलिम, ऐसे आलिम नहीं, बस अपने काम चलाऊ बना लेते हैं गुमराह करने के लिए। यहूदियों में क्या ख्याल है, मेरी बातें सही हैं? तो आप जामे अमजदिया से कब फारिग हुए थे जी? जामे अमजदिया से कब फारिग हुए थे? घोसी से 1998 में हजरत। अरे तो आप तो बहुत पुराने आलिम हो, उसका मतलब जी। जब तक जाल मुस्तफा साहब का इतना उरूज भी नहीं था, आप उस जमाने के फारिग हो जी। अब तो उरूज इनका ज्यादा हो गया, उस जमाने में इतना नहीं था। उस जमाने में वहीं पढ़ाते थे मुबारकपुर में, अशरफिया में। हाँ। और अशरफिया से इनको बड़ा वहां से निकाल दिया गया था, बड़ा जिल्लत मामला हुआ था। फिर वो गुलाम रसूल बलिया भी आया था अशरफिया मुबारकपुर में, तो उसने कह दिया था अशरफिया को, कह दिया था कि अस्तबल जानवरों के बनने की जगह है। अशरफिया को कह दिया था, तो बहुत मारा था लड़कों ने, वहाँ के तालिब इल्मों ने बहुत मारा था उसे, गुलाम रसूल बलिया भी। मालूम है आपको? मारे थे। और उसके बाद से इनके ऊपर भी तो ये फतवा कर चुके थे अल्लामा उबैदुल्लाह खान आदमी पर। हाँ, ये मुहद्दिस कभी ने कहा था कि ये काफिर है उबैदुल्लाह खान आदमी। मैंने खुद सुना ना, जामे हबीबी इलाहाबाद में मैं जाता रहता था, मेरी तकरीर हुई है इलाहाबाद में, तो जामे हबीबी जाके मैं उसमें भी था, क्या कहते हैं वो सेमिनार में जिसमें नमाज चलती हुई कि नहीं, तो उसमें मैंने खुद सुना मुहद्दिस कभी ने कहा कि उबैदुल्लाह खान काफिर है, काफिर काफिर। और मुफ्ती निजामुद्दीन ने कह दिया मुसलमान है, मुसलमान मुसलमान है। अब उबैदुल्लाह खान रुजू कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं उबैदुल्लाह खान आदमी साहब। तो उबैदुल्लाह खान आदमी साहब इतने साल बाद क्यों रुजू कर रहे हैं? 5 साल 6 साल बाद, इतने साल तक क्यों खामोश रहे? इतने साल तक बीवी से बातचीत किया, हम कलामी किया, उसका क्या हुआ? फिर इसके बाद इतने साल तक जो नमाजें पढ़ी उसका क्या हुआ? फिर मुफ्ती निजामुद्दीन साहब के ऊपर उनका क्या हशर होगा जिन्होंने काफिर, उन्होंने कहा, इन्होंने मुसलमान करा दिया। तो उबैदुल्लाह खान ये तो तौबा कर रहे हैं, रुजू कर रहे हैं, लेकिन मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क्यों नहीं कर रहे? वो भी अलग ऐलान करे कि मैंने मुसलमान करा दिया था, मैं भी अब कलमा पढ़ता हूँ, अपनी बीवी से जाके मैं निकाह करूंगा अब जाके, ये कह के जाए। जी। अरे ये मुफ्ती लोग मुझसे तो बात करें कि किसे कहते हैं इफ्ता, किसे कहते हैं फिक़ह, मैं बताऊंगा इन लोगों को, है मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं कर पाते हैं। इनके चेले बात करें मुझसे, मैं बात करूंगा, मेरी डालें, ऑडियो डालें, चैनलों पे डालें, सोशल मीडिया पे डालें, सब सुने, गैर मुस्लिम भी सुने कि इनके अंदर क्या तमाशेबाजी चल रही है। गैर मुस्लिमों क्या तमाशा देखते होंगे इस सोच के कि यार इनमें क्या तमाशेबाजी है, वो मुसलमान नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं है। माशाल्लाह आप बहुत पुराने आलिम हो, अल्लाह ने आपको बहुत नवाज दिया है। तो ये अल्लामा यार मुस्तफा साहब आपके दादा शागिर्द होते? दादा उस्ताद? मैं उन्हीं के पास में पढ़ा, उन्हीं के पास पढ़े जी। देखो जो उनके पास हदीस का इल्म है वो तो सबसे बड़ा ज्यादा इल्म है अभी बरेलियों में, लेकिन उनके पास जो इल्म है वो ऐसा इल्म नहीं जैसे कि शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह जो थे, सहारनपुर मदरसे में पढ़ाते थे मदाइल में, वो नहीं है, वो इल्म नहीं है ना? नहीं, वो नहीं। और वो शेख यूनुस जौनपुरी वो ऐसे आलिम थे कि बड़े बड़े उलमा के शागिर्द थे, और एक दो नहीं सैकड़ों हजारों। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो उनसे इजाजत हदीस लेने के लिए आए थे। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे आलिम जो दुनिया में छा रहे हैं, हजरत शेखुल इस्लाम
शेख उल इस्लाम भी तो 4 हैं साहब, एक 2 बरेलवियों में 2 देवबंदियों में। जी शेख उल इस्लाम भी अपने अपने अलग बना है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेख उल इस्लाम और हुसैन अहमद मदनी साहब शेख उल इस्लाम, और बरेलवियों में भी 2 शेख उल इस्लाम, डॉक्टर अल्लामा तारुक काजी साहब शेख उल इस्लाम, मदनी मियां साहब भी शेख उल इस्लाम। 2 बरेलवियों ने बांट लिए, 2 देवबंद वालों ने बांट लिए, यानी बंटवारा चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक तरह से, हैं? अरे बड़ा मुश्किल। इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे, मैं डलवा दूंगा चैनल पे, लाखों लोग समझ जाएंगे कि यार ज़ियाउल मुस्तफा साहब के शागिर्द, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब के शागिर्द और देवरिया के रहने वाले घोसी से फारिग सन 1998 में लाखों बरेलवी कहेंगे कि नहीं अब तो जो गलती हमसे गलती मानेंगे वो हकीकत बयान करेंगे, सीधा इस्लाम बयान करेंगे, ना हम देवबंदियत न बरेलवियत, हम सीधा इस्लाम बयान करेंगे। जी। अरे तफसीर अलम नशर जिस दिन पढ़ लिया ना आला हज़रत के वालिद की किताब अल्लामा नकवी खान रहमत की किताब, तो उस दिन लाखों बरेलवी नहीं करोड़ों बरेलवी बरेलवियत से अलग हो जाएंगे और इन आलिमों को बहुत बहुत सुनाएंगे कि तुमने हमें गुमराह किया। आला हज़रत के वालिद तफसीर अलम नशर में वही तर्जुमा कर रहे हैं, एक जगह नहीं 50 जगह, हर जगह जो देवबंद वाले करते हैं जिन पर तुम कुफ्र और गुमराही का फतवा लगाते हो, वही तर्जुमा आला हज़रत के वालिद ने भी किया है कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सरी फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। ये सूरह फतह की पहली आयत का सफ़ा नंबर 116 पर तर्जुमा किया है। वो बालुल फाजा का तर्जुमा किया, जब आपको राह भूला पाया तो राहवी सफ़ा 124 तफसीर अलमनशर जिल्द अव्वल में, और पूरी तफसीर अलमनशर में वही तर्जुमा है जो देवबंद वाले करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि बिदअतियों की पहचान ये है कि ये आपस में एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हकीकत से बरेलवी बरेलवी को काफिर कहता है। सफ़ा 173 पे लिखा है जिल्द 2 में तफसीर अलमनशर में। जी। तो इंशाल्लाह फिर बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकसूद अख्तर चिश्ती अशरफी। हजरत मौलाना मोहम्मद मकसूद अशरफ साहब चिश्ती अशरफी फाजिल जामिया अंजदिया मुबारकपुर आजमगढ़। इंशाल्लाह लाखों बरेलवी हजरात अब इंशाल्लाह हम अलग हो जाएंगे और आपसे भी कांटेक्ट करेंगे, मुझसे भी करेंगे। मैं नंबर दे दिया, आपका नंबर भी बता दूं? जी। क्या नंबर है आपका? यही ये वाला 911 88 40 728। फाजिल जली हजरत मौलाना मुफ्ती मकसूद अशरफ साहब अशरफी चिश्ती से कांटेक्ट करें और हकीकत को तलाश करें, सीधा रास्ता इंशाअल्लाह ताला। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह। ठीक है, सलाम।